Hello, dear student. How are you? I hope you all are very fine, happy, and healthy. I am RK Jha, your physics teacher and HOD, director of Toppers 20. Today, I am with a new lecture, and today's topic is combination of error or propagation of error. So first of all, what is the meaning of combination of error? You know, when we decide any physical quantity like density, suppose karo density D is equal to mass by volume. During determination of mass, there is some error in mass, and during determination of volume, there is also some error in volume. So if there is error in mass and volume, then these errors how will appear in density? It is called combination of error. Different component having some error, and how these error combine together in a final result, it is called combination of error. जब कभी आप कोई क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे होते हो तो वो जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उसमें अगर एरर है तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर होगा. तो फाइनल रिजल्ट में वो एरर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कितना होगा फाइनल रिजल्ट का एरर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. हम उसको देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ. वेन एवर यू डू फाइनल रिजल्ट you need some calculation like addition, subtraction, multiplication and division, and sometimes you involve certain power on some quantities. So in this type of process, how we decide final error in result, it is called combination of error. गलतियां तो होती रहती है. अब ये गलतियां कितनी है और फाइनल रिजल्ट में कितनी गलतियां हो रही हैं, ये जो हम डिसाइड अभी करेंगे, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट एडिशन, हाउ एरर प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग एडिशन, हाउ एरर इज कंबाइंड ड्यूरिंग एडिशन. तो लेट एडिशन, suppose x is equal to a plus b. X is your final result and a and b are component. By adding a and b, we get x. So here a is given by, you know that am plus minus delta am. Am is mean value of a, or delta am is mean absolute error of a. Similarly, b is also given by bm plus minus delta bm. So whenever you will express x final result, you need here x is xm plus minus delta xm. So here xm is mean value of x and delta xm is mean absolute error of x. So what will here xm and how will you decide here delta xm? This is our question. अब देखिए हम लोग यहाँ पे, आप x को जब ये लिख सकते हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं xm प्लस माइनस डेल्टा xm इज इक्वल टू, a के बदले में क्या लिख सकते हैं, am प्लस माइनस डेल्टा am प्लस bm plus minus delta bm. Now whenever you open the bracket, you will get am plus bm plus minus delta am plus delta bm. This is your final result. So here it is xm plus minus delta xm.
by comparing this result we can see xm is equal to am plus bm. So we can get xm like this, and similarly delta xm can be given by delta am plus delta bm. What is the importance of this result? This result explains that during addition, the final error result during addition, the final error of result is given by the sum of error of all component. Like mean absolute error of x, mean absolute error of x is given by the sum of mean absolute error of a and mean absolute error of b. Similarly, we can see during subtraction, you can write here x is equal to a minus b, so you can write xm plus minus delta xm is equal to am plus minus delta am minus bm plus minus delta bm. Whenever you will open the bracket, you will get am minus bm plus minus again delta am plus delta bm. Here it is xm plus minus delta xm. So by comparing here, we can find xm is equal to am minus bm. This is one result, and again delta xm, it is plus minus delta xm. It is given by like this, delta am plus delta bm. What is the significance of this result here? Very important. It means during subtraction also the mean absolute error of final result is given by the sum of mean absolute error of two values like a and b. It means all component. जब हम दो चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एरर को भी तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो पहला चीज नहीं, वी कैलकुलेट ऑलवेज मैक्सिमम एरर. हम हमेशा क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? मैक्सिमम एरर क्या होगा. और यहां पे जब मैक्सिमम एरर की बात हो रही है तो आफ्टर ऑल प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम एरर की संभावना होती है वो होता है सम ऑफ दीज टू एरर्स, delta m plus delta bm. That's why we can also say that errors are always additive in nature. एरर हमेशा ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं किया जा सकता है. सपोज करो a में एरर है 0.2, मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और b में भी एरर है 0.2. अगर हम लोग a माइनस b करेंगे और यहाँ पे डेल्टा a माइनस डेल्टा bm कर रहे होंगे तो 0.2 minus 0.2 the 0. It means what? Is there no any error in x? It is impossible because there is no any calculation, no any measurement without error. तो एरर तो है ही यहाँ पे, तो एरर हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं. एरर कैन नॉट बी नेगेशन, कैन नॉट बी जीरो. सो एरर इज ऑलवेज एडिटिव. सो इट इज एडिटिव इन नेचर. हमने यहाँ पे एरर को ऐड किया है, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. एंड आपको ये याद रखना है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड ही किया जाता है. दैट्स इट. दूसरी चीज xm, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे xm का मतलब am प्लस bm,
और जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे XM इक्वल टू AM माइनस BM, आप यहाँ देख सकते हो, ये एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। तो हियर XM इक्वल टू AM माइनस BM। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर। एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये काफी बढ़िया होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों की बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ L1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस फर्स्ट L1 प्लस L2, सेकेंड L1 माइनस L2। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 का अब ये L जो होगा ये हमारा किस फॉर्म में होगा, LM प्लस माइनस डेल्टा LM। इट मस्ट बी इक्वल टू L1 का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा L1 M प्लस L2 का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा L2 M। दिस इज L1 का मीन वैल्यू एंड दिस इज डेल्टा L1 M। दिस इज मीन वैल्यू ऑफ L2 and this is mean absolute error of L2. So according to final result we can write here LM is equal to L1 की मीन वैल्यू प्लस L2 की मीन वैल्यू। So it is 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, so it is 50 सेंटीमीटर। Okay, and similarly delta LM visible है, delta LM is equal to, it is plus minus, so it is plus minus delta L1 M plus delta L2 M, and it is what, it is here 0. plus minus 0.3 plus 0.5, so it is 0.8 centimeter. This is your error. Now फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन L1 प्लस L2, जिसको हमने L माना था, ये हमने L माना था, फाइनल रिजल्ट हमने L जिसको मान लिया था। सो फाइनल रिजल्ट ऑफ L यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर L इज गिवन बाय 50 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन। इज इट क्लियर? अगर यहां हमसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज द percentage error of L1 plus L2, see here, if you want here to find percentage error of final result L1 plus L2, हमने यहाँ पे L1 plus L2 को कैपिटल L के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड percentage error of L, so we can write fractional error into 100, and here fractional error is nothing but 0.8 upon 50 into 100, so it is 1.6. This is here percentage error of 1.6%, percentage error of final result of L1 plus L2. ठीक है? Okay, now in the same question second part की बात हम कर रहे हैं। In second part we have to find L1 minus L2, and suppose here L1 minus L2 means L dash is equal to L1 minus L2. So here mean value of L dash
must be equal to L1 mean minus L2 mean. So mean value of L dash is given by, it is L1 minus L2. Do L2 minus L1, रिजल्ट हमेशा डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो इट इज L2 माइनस L1. सो इट इज L2 का मीन वैल्यू माइनस L1 का मीन वैल्यू. सो इट इज 30 माइनस 20 सेंटीमीटर. सो इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो L यहाँ पे हमने क्या देखा, L डैश का मीन वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो प्लस माइनस डेल्टा L डैश मीन, मतलब L डैश का मीन एब्सोल्यूट एरर. तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे वेरी सिंपल, इट इज अगेन गिवन बाय L1 मीन डेल्टा L1 मीन प्लस माइनस डेल्टा L2 मीन. सो इट इज 0.3 plus 0.5 and 0.8. So again we can see here mean absolute error of L dash is 0.8. This is proof numerically how error combined during addition and subtraction. ओके गुड. नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में. कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप उसको देखो, आराम से समझ में आ जाएगा. और अगर और भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालो. जब कभी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो जो कभी कुछ प्रॉब्लम आती हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूं. मेरी कोशिश यही होती है हमेशा कि मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा सकूं. जब आप मेरा वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. फिर भी कहीं कुछ कमी अगर है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. प्रोपगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सपोज करो यहां हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन, और यहां हम बात कर रहे हैं डिवीजन का, डिवीजन. सपोज x इज इक्वल टू a इंटू बी एंड हेयर x इज इक्वल टू a अपॉन बी. तो x है तो हमें x की मीन वैल्यू निकालनी है और हमें डेल्टा x निकालनी है दोनों केस में. तो जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू होगा वो हमारा am इंटू बी एम आसानी से निकल जाएगा. कैसे आएगा ये रिजल्ट हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे. इसकी डेरिवेशन आपकी होती है, उसको दिखाएंगे बाद में. पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं. डिवीजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें xm आएगा, हेयर xm इज a मीन अपॉन में b का मीन वैल्यू. In this way you can find xm in both case, multiplication या division. But जिस तरीके से आपने देखा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर का कॉम्बिनेशन सेम तरीके से हुआ, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी एरर का कॉम्बिनेशन सेम तरीके से होता है. इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है, मैं लिख भी देता हूं कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना. डिवीजन एरर propagated in form of फ्रैक्शनल एरर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं. फ्रैक्शनल एरर क्या मतलब है यहाँ पे
कि जब कभी आप मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में जो एरर का प्रोपेगेशन है वो किसके फॉर्म में होता है? फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में। कहीं कहीं बुक में देखेंगे लिखा होगा रिलेटिव एरर, तो फ्रैक्शनल एरर को हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं। और यहां पे एक बात और जानोगे जो काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, उसमें जो एरर दिख रहा होता है, तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट इज गिवन बाय द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ऑल इंडिविजुअल। लिख के देख लो इसको। मैं यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे ये कहना है कि इस x में जो रिजल्ट हमारा है, यहां जो फ्रैक्शनल एरर होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल एरर इज गिवन बाय xm, डेल्टा xm अपॉन में xm, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ a एंड b। इट मीन्स डेल्टा xm बाय xm इज इक्वल टू डेल्टा am अपॉन में am प्लस डेल्टा bm अपॉन में bm। दिस इज फाइनल रिजल्ट। अब यहां अगर हम एक बात और कर देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 100, मतलब यह है कि अगर आप, चलो यहां कर देता हूं, अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं डेल्टा xm बाय xm इंटू 100, तो यहां हमें दिख रहा होगा डेल्टा am अपॉन am प्लस डेल्टा bm अपॉन bm इंटू 100। अब इंटू 100 का मतलब क्या होता है? जब आप फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हो, इट मीन्स इट इज नॉट परसेंटेज एरर। सो यू कैन राइट हियर percentage error in x must be equal to percentage error of a plus percentage error of b. It is your again one result, important result. तो यहां पे हमें क्या पता चला कि कोई भी केस हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, दोनों केस में जो फाइनल रिजल्ट का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका कैसे करेंगे हम लोग? तो हमें यह पता होना चाहिए कि एरर का प्रोपेगेशन जो हो रहा है वो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में हो रहा है। एक दूसरी चीज, फ्रैक्शनल एरर ऑफ रिजल्ट जो हो रहा है वो कंपोनेंट, जो जैसे ए और बी यहां का कंपोनेंट है, ए और बी यहां का कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। सारे इंडिविजुअल के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर। ये समझना बहुत ही जरूरी है। और इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल परसेंटेज एरर। इट मीन्स मैं यहां लिखा हूं परसेंटेज एरर ऑफ x इज गिवन बाय परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। तो ये चीज जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज करो यहां पे एक न्यूमेरिकल की बात मैं कर लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड भी, और इसको मिटा दो, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे भी और डिवीजन के बेसिस पे भी। सपोज करें कि एक क्वेश्चन यहां पे है, देयर इज रेक्टेंगुलर फील्ड, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज गिवन बाय एंड ब्रेथ इज गिवन बाय, मैं आपको डाटा बता दे रहा हूं तुरंत, एक मिनट में। एक मिनट में आपको डाटा क्लियर कर दे रहा हूं।
L इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर, L इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर एंड B इज इक्वल टू यहाँ पे है 50 प्लस माइनस 2 मीटर, 50 प्लस माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है एक्सप्रेस एरिया ऑफ द फील्ड। जो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा ये आपको निकालना होगा। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया। क्या निकालना होगा हमें? परसेंटेज एरर इन एरिया। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पहला क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस एरिया ऑफ द फील्ड, इसका मतलब क्या होगा कि हमें ए निकालना है, और अगर ए निकालना होगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम निकालना है। ये हो जाएगा हमारा एरिया का एक्सप्रेशन। क्योंकि किसी भी पैरामीटर्स को जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी भी मेजरमेंट को जब आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो, वहाँ पे हमें एरर लिमिट दिखाना जरूरी है। विदाउट एरर लिमिट उसका एक्सप्रेशन सही नहीं माना जाएगा। साइंटिफिकली बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? ए इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ चल रहे होते हैं। तो आई थिंक सॉल्यूशन एक पार्ट में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास जब हम ए एम निकालेंगे तो हमने क्या पढ़ा है कि ए एम का मतलब क्या होना चाहिए? एल एम इंटू बी एम। तो यहाँ पे एल एम की वैल्यू कितनी है? 200। सो इट इज 200 इंटू बी एम की वैल्यू कितनी है? 50। सो इट इज 50। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर। चलो एम निकल गया हमारा। दूसरी चीज हम क्या जानते हैं? हमें डेल्टा एम चाहिए। नाउ वी नीड हियर डेल्टा एम। हाउ कैन वी फाइंड डेल्टा एम? हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि फ्रैक्शनल एरर इन एरिया जो होना चाहिए, मतलब डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम, बोर्ड विजिबल है, इट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल एम अपॉन में एल एम प्लस डेल्टा बी एम अपॉन में बी एम। इट मीन्स डेल्टा एल एम here it is 5 अपॉन में एल एम it is 200 प्लस डेल्टा बी एम it is 2 here अपॉन में बी एम 50. You can write here it is equivalent to 1/40 plus 1/25. Here LCM is 200. तो 45 या 200, तो 5 प्लस 25 8 या 200, तो 8. It is here 13/200. Now 13/200 is what? It is here fractional error of area. So अगर हमें यहां से डेल्टा एम चाहिए होगा, आप यहां लिख सकते हो डेल्टा ए एम बाई ए एम इज इक्वल टू 13/200. तो यहां से हम डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम इज इक्वल टू 13/200 इंटू एम कर दें, और एम हमारा कितना था? ये निकला हुआ हमारा एम 10,000. तो इंटू 10,000, 0 से 0 कैंसिल। सही है, बिल्कुल 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 सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नाउ इट इज 13. ओके, ये 2 है तो 2 से ये 50. नाउ इट इज 13 इंटू 50. तो 13 0 जा 0 एंड 13 5 जा 65. इट इज 650. इट इज हेयर 650. अब यहां से हमें डेल्टा ए एम भी आ गया कैलकुलेट करके। कितना आ गया? 650. तो हम एरिया को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ए एम प्लस माइनस डेल्टा एम को कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए एम कितना था हमारे पास? 10,000 प्लस माइनस डेल्टा एम कितना आ गया हमारे पास? 650. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर.
सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पूरी प्रोसेस कर ली, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का पूरी प्रोसेस खत्म किया। 1 मिनट। नाउ अब देखिए हम लोग, अब यहाँ पे हमें बात करनी है परसेंटेज एरर ऑफ एरिया का। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको ये रिजल्ट में यहाँ लिख दिया हूँ। फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे हमारा 13/200 आ चुका है, आपको ये याद रखना होगा। मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू हमने कितना लाया है, इट इज हेयर 13/200। ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लिया है। इट इज हेयर फ्रैक्शनल एरर ऑफ एरिया। अब हम इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि यहां जो हमारा सेकेंड पार्ट था, फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया, तो वो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा परसेंटेज डेल्टा ऑफ एरिया इज इक्वल टू, आपको तो ये याद है कि परसेंटेज एरर निकालने का मतलब होता था फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो हेयर फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम इंटू 100, सो इट इज 13/200 इंटू 100। सॉल्व करोगे ये कट आएगा कितना, 6.5%। तो हमें यहाँ पे क्या देखा कि परसेंटेज एरर इन एरिया जो आ रहा है वो कितना आ गया हमारे पास, 6.5%। अच्छा, अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ आपको। एक और तरीका देखो, आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने अभी यहाँ पे ये देखा कि फाइनल रिजल्ट का जो परसेंटेज एरर होना चाहिए, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया जो होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू, आपको यहां पे है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस इट इज केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे परसेंटेज एरिया, परसेंटेज एरर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। ठीक है, ये रिजल्ट हमने लिख लिया यहां पे। अब देखो परसेंटेज एरर इन लेंथ कैसे निकालोगे, तो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर 5 है यहाँ पे, अपॉन में मीन वैल्यू 200 है, इनटू 100 करेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल, ये आएगा आपका 2.5। सिमिलरली अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर ऑफ बी, ब्रेथ का परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो फिर से यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर 2 अपॉन मीन वैल्यू 50 इनटू 100, ये काट पीट करके आ जाएगा आपका 4। So here percentage error of length 2.5% and percentage error of breadth 4%. So percentage error in area is given by 2% plus 2.5 है ना, 2.5% plus 4%, क्या हो जाएगा ये 6.5%। अब देखो आप इस तरीके से कैलकुलेट किया तब भी 6.5%, हमने जो पीछे भी कैलकुलेट किया था वहां भी देखा आपने, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, वहां भी हमने निकाला है परसेंटेज एरर ऑफ एरिया कितना, 6.5%। वेरी क्लियर। अच्छा, अब अगर हम यही कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं डिवीजन वाले केस में, वहां पे कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल में डिवीजन का आपको दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको डिवीजन का, एक न्यूमेरिकल वहां से भी कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमें डिटरमाइन करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। गिवन है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू, यहाँ पे मास गिवन है आपको, मास है गिवन 20 प्लस माइनस 0.2 kg, 20 प्लस माइनस 0.2 kg मास गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है आपका 10 प्लस माइनस 0.1, 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब, ये हमारा है वॉल्यूम। ठीक है, अब
जब डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, इट मीन्स इट इज केस ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन में कैसे करते हैं हम लोग, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू, अगर मल्टीप्लीकेशन था तब भी और डिवीजन है तब भी, दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें, कि इट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ मास कितना होता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ मास 0.2, तो 0.2 आपको में मीन वैल्यू 20, इट इज 20 इंटू 100, तो ये यहां से 5, तो 0.2 इंटू 5 इट इज 1%। ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1, तो 0.1 अपॉन मीन वैल्यू इट इज 10 इंटू 100, ये 10 से ये कैंसिल, तो इट इज अगेन 0.1 इंटू 10, तो 1%। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी जो होना चाहिए, इट मीन्स परसेंटेज एरर ऑफ मास, तो ये 1% है, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम इट इज अगेन 1%, तो इज इक्वल टू 2%। मतलब क्या हुआ कि डिवीजन का केस था, वहां पे हमने निकाला परसेंटेज एरर, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अच्छा, अगर हमें डिवीजन को एक्सप्रेस करना होता कि एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल, हाउ कैन वी एक्सप्रेस डेंसिटी, देखो इसको, अगर हमें डेंसिटी को एक्सप्रेस करना होता तो कैसे करते, आप यहां पे देख रहे हो कि डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है m बाय मास बाय वॉल्यूम। तो पहले हमें डेंसिटी का मीन वैल्यू चाहिए, तो मीन वैल्यू ऑफ डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो मीन वैल्यू ऑफ मास अपॉन मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो मीन वैल्यू ऑफ मास है 20, तो इट इज 20, मैं एक लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज मास का मीन वैल्यू अपॉन में वॉल्यूम का मीन वैल्यू। तो मास का मीन वैल्यू कितना 20 अपॉन में 10, तो इट इज 2 kg पर मीटर क्यूब। इसकी बात हम लोग करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हमें हमने अभी पढ़ा है कि फ्रैक्शनल एरर ऑफ रिजल्ट इज गिवन बाय द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इट मीन्स डेल्टा रो एम अपॉन में रो एम मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा मास का मीन वैल्यू अपॉन में डेल्टा वॉल्यूम का मीन वैल्यू। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ मास, सॉरी अपॉन मास का मीन वैल्यू प्लस यहाँ पे करेंगे डेल्टा वी एम अपॉन में वी एम, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 0.2 अपॉन में 20 प्लस 0.1 अपॉन में 10। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.2 बाई 20 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0.2 बाई 20 को हम लिख सकते हैं 0.01 प्लस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा रो एम अपॉन में रो एम इज इक्वल टू 0.02, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, अगर हमें यहां से डेल्टा रो एम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 0.02, अब ये डेल्टा एम को आप राइट साइड ले जाओ तो इनटू रो एम, डेल्टा एम है रो एम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे रो एम कितना था हमारे पास 2, तो इट इज 0.02 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.4। तो यहां से अगर हमें डेंसिटी को एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस माइनस 0.4 kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब देखें, अगर हमें यहां से निकालना है परसेंटेज तो कैसे निकालते हैं, डेंसिटी तो हमें मिल गया, अब अगर हमें यहां से निकालना हो डेंसिटी का परसेंटेज एरर तो क्या कर सकते हैं, सॉरी ये डेंसिटी है तो इट इज गिवन बाय मीन वैल्यू कितना है 0.4 अपॉन में मीन
मीन एब्सोल्यूट एरर 0.4, अपन में मीन वैल्यू कितना 2 इंटू में 100, तो ये 2 से आ जाएगा 50। अब यहाँ ये कितना हो जाएगा, इट इज हेयर 20। So this is the percentage error of density। अब हम इस तरीके से देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का हमने रूल यहाँ पे क्लियर किया, और दोनों के रूल को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन या ड्यूरिंग डिवीजन। और इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट अब जो हम करने वाले हैं वो काफी ही इंपॉर्टेंट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन रिलेशन वेयर पावर इन्वॉल्व्स, जहां पावर इन्वॉल्व हो रहा होता है। सपोज करो यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन इन्वॉल्विंग पावर, जहां पे पावर इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे हम कैसे एरर को प्रोपेगेट करना सीखते हैं उसको देखो। तो सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू, हमारे पास एक रिजल्ट है a का पावर a इंटू b का पावर b अपॉन में c का पावर c। अब यहां पे a का मतलब फिर से वही चीज am प्लस माइनस डेल्टा am, b का मतलब फिर से वही चीज bm प्लस माइनस डेल्टा bm, एंड c का मतलब cm प्लस माइनस डेल्टा cm। अगर ये चीजें हैं यहाँ पे तो xm की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल xm क्या होना चाहिए, तो am का पावर a कर दो, bm का पावर a कर दो, अपॉन में cm का पावर a कर दे। मतलब जैसा रिलेशन, एक मिनट, इसका मतलब जैसा रिलेशन वैसा प्रोसेस, ठीक है। xm निकल गया हमारा। अब यहां पे जो फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, फिर मैं अभी सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा हूं। ये जो पावर वाली केस है ये भी तो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है, पावर का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्म है। तो यहां भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन करना क्या होगा इसमें कि पावर को पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में भी। जो हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का पावर है उसको हम लोग पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। अगर हमें यहां पे निकालना है फ्रैक्शनल एरर ऑफ x, इट मीन्स डेल्टा xm अपॉन में xm, तो क्या करेंगे हम लोग, a का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा am अपॉन में am, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a यहां पे क्या है, कैपिटल का पावर है। सिमिलरली b इंटू डेल्टा bm अपॉन में bm प्लस सिमिलरली क्या करेंगे, पावर c का, ये पावर है c, यहां पे c का पावर c है, यस, तो पावर c से पीछे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसमें, फ्रैक्शनल एरर ऑफ c में, डेल्टा cm अपॉन में cm में। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया। अब अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज एरर ऑफ x। अब यहां भी 100 से ऐसे करो कि दोनों तरफ जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 का मतलब होता है परसेंटेज एरर, यस। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस b इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस c इंटू ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये सब क्या है, पावर है, a का पावर, b का पावर, c का पावर रिस्पेक्टिवली। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c इंटू डेल्टा c इंटू परसेंटेज एरर इन c। तो हमने ये देख लिया। अब इसमें जो जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वहां पे आपसे फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ही पूछा जाता है। ये जो मैं xm निकालने का यहाँ पे बताया हूं, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, ये पूछा। तो अब क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां से भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग यहां से भी कर लेते हैं, एक मिनट, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि x इज गिवन बाय a पावर 2 इंटू बी पावर 3 अपॉन में c पावर 2 इंटू अंडर रूट डी। ये गिवन है आपका इक्वेशन। गिवन दैट, यहां पे और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन दैट परसेंटेज एरर ऑफ A, B, C and D are 2%, 3%, 3% एंड 4%। ये गिवन है आपको। क्या गिवन है हमारे पास कि A, B, C, D का इंडिविजुअल एरर आपको गिवन है। तो यहां पे करना क्या है, क्वेश्चन आपसे है कि फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। इसका मतलब है क्या करना है, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज डेल्टा x। तो हमने रूल क्या पढ़ा अभी कि जहां कहीं भी पावर इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज अगेन स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहां भी हमें वही रूल फॉलो करनी है कि रिजल्ट का जो परसेंटेज एरर होगा ये हर इंडिविजुअल के परसेंटेज एरर इनटू उसका रिस्पेक्टिव पावर के सम के बराबर होगा। हमें अभी पीछे ये रूल पढ़ा था, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, तो a का पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a। सिमिलरली b का पावर 3 है तो प्लस करके 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b लिखनी है। c का पावर भी यहाँ पे 3 है, सॉरी एरर 3 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्लस c का पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस c और d यहाँ भले ही नीचे डिवाइडेड बाय है फिर भी हमें यहाँ प्लस ही करना है, बिकॉज एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ पे d के लिए पावर कितना है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, आप लोग जानते हो इस चीज को। तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 इंटू ए का कितना है एरर 2%, तो 2% प्लस 3 इंटू बी का एरर कितना है 3%, तो यहाँ पे 3% प्लस सी का एरर कितना है तो 2 इंटू अगेन 3% गिवन है, प्लस डी का एरर कितना है 4%, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 4%। सॉल्व करो सबको, है जगह थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब सबको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4% प्लस 3 इंटू 3 9% प्लस 2 इंटू 3 6% प्लस ये 1/2 से 4 तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2%। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 9 4 13 6 19 2 21, सो इट इज 21%। तो क्या पता चला हमें यहाँ पे कि इस कंडीशन में अगर कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपका हो, एक्सप्रेशन हो, तो वहां पे x का जो परसेंटेज एरर होगा फाइनली कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल लिया हमने। और ये कितना है यहाँ पे, इट इज 21%। एक और इजी सा कॉन्सेप्ट यहां देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देखो। सपोज करो आपको ये कहा गया कि फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², और यहाँ गिवन है कि परसेंटेज एरर ऑफ मास कितना है 2%, परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी कितना है तो 3%। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब देखो ये हाफ जो है ये फिक्स क्वांटिटी है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय m का पावर 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस v का पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू
परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मास का परसेंटेज 2 है यहाँ पे तो 2% प्लस वेलोसिटी का 3 है तो 2 इंटू 3%, क्या हो जाएगा ये 2% प्लस 6% तो इट इज इक्वल टू 8%। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज एरर है वो कितना निकला हमारा 8%। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एरर का प्रोपेगेशन कैसे हो सकता है ड्यूरिंग एडिशन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग कोई इक्वेशन जहाँ पे पावर इन्वॉल्व हो रहा हो। तो सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन विद बेटर एक्सप्लेनेशन देखा है। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करें, उसको आराम से लिख के प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अच्छा, एक बात और सुन लो, अगली क्लास स्पेशली नीट और जेई के लिए होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक भी जेई मेंस का या नीट का एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो वेरी 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 स्पेशल फॉर द नीट एंड जेई मेंस, तो उसको देखना, जरूर देखना उसको, उसका इंतजार करें आप लोग। मैं वो जल्दी वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू एंड वंस अगेन, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। और एक बात और, आप सभी को कंग्रेचुलेशन, थैंक यू भी। आज 100 सब्सक्राइबर पूरा हुआ और मैं चाहता हूं कि आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे ताकि ये 100 1 लाख में और 1 लाख 1 मिलियन में जल्दी कन्वर्ट हो, और होगा ज़रूर, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। थैंक यू।